Hi, everybody. Today we're going to be discussing immunity building with breathwork. Today we have our coach Ruchi joining us, and she's here with some very insightful tips for you all. And I would like to request you all to definitely comment below with your queries, and we'll answer them during the live. Okay, coach. I think we can begin now. So hello, everybody. Hello again. Today we have Ruchi Khosla joining us. She's the yoga therapist and breathwork coach here at Vito. And the live is on the subject of immunity building with breathwork. So to start off, Coach Ruchi, if you'd like to just give us a quick brief about the live first. Hi, hello everyone. My name is Ruchi Khosla and I'm the yoga therapist at Vito. So I'll be talking about how you can improve your immunity with your breath work. So something that actually needs a lot of awareness in these days because COVID is again on a high. And if you are aware of your breath, you can actually increase your immunity to fight COVID. So that's all we'll be talking about. So should I start, Rosie? Yeah, just to start off, I would like to ask you a couple of questions. Firstly, what are some of the prerequisites of breath work? Okay, so breath work actually, we are breathing all day. Pura din hum saans le rahe. But when we are sitting to do conscious deep breathing exercise, there are certain prerequisites that should be taken care. First of all, you try to sit with your spine erect. Because during the day, we definitely have a practice of slouching and drooping down. So whenever you are practicing breathwork, try to keep your spine erect. If you have problem with your back and you're not able to sit erect, you can take a back support. But try to keep it straight so that the energy flow in the body is maximum because spine is the main energy channel of our body. So when we are doing conscious deep breathing exercise, we should make sure that the breath goes into each channel of our body. Second prerequisite is if you can sit in Sukhasana, like I'm sitting in Sukhasana, okay, cross-leg, or any other meditative posture, like this is Ardha Padmasana. And if someone can sit in Padmasana, that is even better. In Padmasana, your spine naturally stays erect. So it generally doesn't droop down. Then there is one more asana called Vajrasana in which you sit on knees. But if you have problems sitting on the floor, you can sit on the chair, but while sitting on the chair, you have to uncross your legs. So sitting on the floor, the legs should be crossed, and sitting on the chair, the legs should be uncrossed. So two prerequisites. Number third is empty stomach. Any breath work that you do should be done on an empty stomach because we engage the belly. And if the belly is full with food, you cannot actually deep breathe properly. So ideal time to do deep breathing is early morning, first thing in the morning. Or else if you don't have time in the morning, then at least 3 hours gap from your major meal. So these are the 3 prerequisites for breath work. Thank you for that, coach. Moving on, मुझे आपसे पूछना था कि ये breathing की correct and proper technique क्या है? Okay. So generally देखा जाता है, I work with a lot of people on breath. Generally it's seen that people जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट भी अंदर ले जाते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट भी बाहर छोड़ जाते हैं और ये unconsciously हो रहा है, they're not even aware. So during the day we take more than 24,000 breaths और हर breath हमारे पास एक opportunity है to detoxify the body provided it is done correctly. So यहाँ पे हमारा पेट एक गुब्बारा है, तो जब सांस अंदर जाते हैं गुब्बारा भरना चाहिए और सांस जब बाहर जाते हैं गुब्बारा deflate होना चाहिए. So correct breathing technique is breathe in, tummy out, and breathe out, tummy in. Generally, it's not seen in people because this thing is altered. The right breathing is altered due to stressful lifestyle, wrong eating habits. I can say majorly bad lifestyle hampers your breath. The more जितना आप ठीक breathe करोगे उतना कम आप stress होगे और जितना उल्टा breathe करोगे your body and mind holds the stress for very long.
जनरली इसको ठीक करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर आप उल्टा ब्रीथ कर रहे हैं और आप अवेयर हो गए कि आपको ठीक ब्रीथ करना है, तो 3 to 4 डेज में आपकी ब्रीदिंग ठीक हो सकती है। सो दिस इज द राइट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट। और जब ये पूरी ठीक हो जाती है, तो इवन ड्यूरिंग द डे व्हेन यू ब्रीथ इन, योर टमी कम्स आउट। और ये मैकेनिज्म सिर्फ रात को अपने आप ठीक हो जाता है। जब हम रात को लेटते हैं सोने के लिए, तब आपका ये मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट ठीक होता है। दैट इज वाई नींद में बॉडी सारा का सारा अपने सिस्टम को रिस्टोर कर पाती है, बिकॉज पूरी ऑक्सीजन उसको मिल गई। तो ये अगर पूरा दिन ठीक चले, तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत बेटर हो सकती है। Thank you for that, coach. And another question would be, ये breathing and immunity में क्या relation है? Okay. इम्यून फंक्शन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैट इज, आई कैन से, द गार्ड सिस्टम, है ना, सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आपका इम्यून फंक्शन वीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन अंदर जाएगा, एनी वायरस और एनी बैक्टीरिया, और आपके पूरे शरीर को हैम्पर कर सकता है। नाउ द सर्वेलेंस गार्ड हैज टू बी एक्टिव, राइट? तो जब हम प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं कर रहे, तो हमारे पेट में या हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो इम्यून फंक्शन, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसके सेल्स तक भी 100% ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। वहां पे सिस्टम वीक होना शुरू होता है। एक ये रीजन है। सेकेंड, हम पूरा दिन में बहुत बार स्ट्रेस होते हैं, मेजरली तो स्ट्रेस्ड ही रहते हैं ज्यादातर। तो स्ट्रेस हमारे इम्यून फंक्शन को वीक करता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो स्ट्रेस को कॉम्बैट करते हैं। जब स्ट्रेस अपने आप नीचे आएगा विद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपका इम्यून सिस्टम बेटर फंक्शन करेगा। तो ये तरीका है अपने इम्यून फंक्शन को एनहांस करने का थ्रू द राइट ब्रीदिंग टेक्निक्स। Thank you, coach. Now we can begin with our session, and if you could please tell us about some breathwork exercises जो हमें हमारे immunity boost करने में help करेंगे। Over to you. वैसे तो कोई भी ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी ही होगी, क्योंकि हर ब्रेथ वर्क का एक ही की है, एक ही बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट है वो हर ब्रेथ वर्क का ही है कि वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। सो हमारे दो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जब आप स्ट्रेस होते हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। दिस इज कॉल्ड द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रेस हुए तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका इम्यून फंक्शन खराब हो जाएगा। तो जब हम कोई भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जब हम सांस को पेट तक लेके जाते हैं, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे ही ये सिस्टम ऑन होता है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्लो डाउन हो जाता है, कॉर्टिसोल नीचे आता है और आपका इम्यून फंक्शन बेटर काम करता है। ओके, सो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी 4-7-8 ब्रीथिंग, क्योंकि अभी हमने स्ट्रेस की बात की है, तो स्ट्रेस से रिलेटेड ये एक बहुत इफेक्टिव ब्रेथ वर्क है। इसको इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं हम लोग अपने ब्रेथ वर्क में। इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर मींस ये इमीडिएटली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करता है और आपका स्ट्रेस नीचे लेके आता है। सो 4-7-8 का मतलब है, आप जब सांस भरेंगे 4 के काउंट तक भरेंगे, जब होल्ड करेंगे 7 के काउंट तक होल्ड करेंगे, और जब रिलीज करेंगे 8 के काउंट तक होल्ड करेंगे। एक्सलेशन को इनहेलेशन से डबल करेंगे, तो स्ट्रेस इजीली रिलीज हो जाता है बॉडी से। इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे कि हम ब्रीथ इन तो नाक से करेंगे, बट ब्रीथ आउट मुंह से करेंगे। ओके, सो स्पाइन इरेक्ट, आई एम सिटिंग इन पद्मासन। सो आप जनरली ब्रेथ वर्क करते वक्त 3 मुद्रास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे मेन है ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। ओके, इंडेक्स फिंगर की टिप को और थंब को ज्वाइन करना, पाम फेसिंग अप ऑन द, एक ही मुद्रा है। सेकंड है प्राणा मुद्रा। प्राणा मुद्रा इज लास्ट की 2 फिंगर्स को ज्वाइन कर लो थंब से, इसमें। और तीसरी है भैरव मुद्रा। लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ रखेंगे और इसको गोल में रखेंगे। तो किसी भी मुद्रा में बैठे आप, जब कोई भी ब्रेथ वर्क कर रहे हैं। ओके, सो मैं ज्ञान मुद्रा में बैठी हूँ। तो इसमें एक चीज और, ब्रेथ वर्क करते वक्त अगर आंखें बंद रखेंगे, तो यू हैव अ चांस टू गो इनवर्ड। तो आपको अपने अंदर जाने का मौका मिलता है जब आप आंखें बंद करके करते हैं। तो इन दिस आई ब्रीथ इन टू द काउंट ऑफ 4, hold to the count of 7,
and I slowly breathe out to the count of 8 through my mouth. So this is one breath work. इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं और इसको दिन में मल्टीपल बार भी कर सकते हैं. तो एक रिमाइंडर बहुत अच्छा है कि हर मेजर मील से पहले इसको कर लो. एक बार अर्ली मॉर्निंग कर लो, फिर ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, क्योंकि तब प्रीटी मच पेट खाली होता है. और एक बार सोने से पहले. तो आपका पूरे दिन में स्ट्रेस बिल्डअप ही नहीं होगा. एंड मोर ओवर व्हेन यू कनेक्ट टू योर ब्रेथ, योर माइंड ऑटोमेटिकली काम्स डाउन. बिकॉज कौन सा सिस्टम ऑन हो गया? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. तो एकदम माइंड काम हो जाता है. तो एक तो ये ब्रेथ वर्क है, मैंने बता दिया, इसको 5 बार करें तो बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं. एक ब्रेथ वर्क है जिसको हम बोलते हैं कपालभाति. कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ एक क्रिया भी है, क्लेंजिंग क्रिया है. कपालभाति मेजरली हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करती है और हमारे मन से भी भारीपन रिलीज करती है. तो कपालभाति करने के लिए हमें एक्सेल करना होता है नाक से और पेट को अंदर पुश करना होता है. लाइक आपके अंदर कोई चीज ब्लॉक हो रही है और आप उसको झटके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो. So this is Kapalbhati. So when we exhale with pressure, we tend to release the blockages. We tend to cleanse the system and majorly the lungs. So Kapalbhati is very effective for the lungs. But there is a contradiction. Kapalbhati body में heat generate करता है, ठीक है, और बहुत rapid pace प्राणायाम है. तो जिन लोगों को epilepsy या high blood pressure की प्रॉब्लम है वो कपालभाति ना करे तो बेहतर, क्योंकि इसका मतलब जिनका हाई ब्लड प्रेशर ऑलवेज ऑन अ हाई रहता है उनको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए. बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको करने के लिए अगेन आई एम सिटिंग इन ज्ञान मुद्रा. इसमें हम हाथ को नीचे करके बैठेंगे क्योंकि हम प्रेशर से सांस बाहर छोड़ रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू रिलीज द टॉक्सिन्स आउट. हम इनहेल तो कर ही नहीं रहे, इसमें इनहेलेशन अपने आप होगा. तो हाथ नीचे. ओके, सो आई स्टार्ट एक्सेलिंग. आई विल डू 10 ब्रेथ्स जिसमें मैं पेट को अंदर पुश करूंगी. तो आपने देखा होगा कि इसमें आपको इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ी. आपने एक्सहेल किया और सांस अपने आप अंदर गई. इसको मिनिमम 100 टाइम्स से स्टार्ट करें और इसको इंक्रीज करते जाए 5 से 7 मिनट. कपालभाति करते वक्त स्पाइन पे प्रेशर आता है. तो जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो बैक सपोर्ट के साथ कपालभाति करें क्योंकि इट गिव्स अ जर्क ऑन द स्पाइन. और शुरू में वो थोड़ा सा जर्क ज्यादा लगता है. जब हैबिट बन जाए फिर आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं. ओके, कपालभाति को ग्लोइंग स्कल भी प्राणायाम भी बोला जाता है बिकॉज इट शार्पन्स द इंटेलेक्ट. जब हम एक्सेल करते हैं और बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और ब्रेथ को एक्चुअली एक्सलेशन इज द मीडियम टू रिलीज द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. तो जितना वेस्ट निकलेगा उतनी जल्दी क्लीन एयर आपके ब्रेन तक पहुंचती है. ओके, दैट्स हाउ इट शार्पन्स एंड ब्रिंग अ ग्लो ऑन योर फेस एज वेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग प्राणायाम. कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं. तो डेली करना चाहिए कपालभाति को और इसको ब्रेथ वर्क की शुरुआत में करें. जब आप प्राणायाम करने बैठे हैं तो सबसे पहले 4-7-8 के बाद कपालभाति करें बिकॉज इससे आपकी क्लेंजिंग हो जाए. तो ये क्रिया है, ठीक है. एक मैं और बताऊंगी विच इज अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम इज द सेफेस्ट प्राणायाम फॉर एवरीवन. ये इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. इसको बैलेंस्ड ब्रीथिंग बोला जाता है. ये हमारे मन में और बॉडी में दोनों जगह बैलेंस क्रिएट करता है. हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर बैलेंस लेके आता है. हार्मोन्स एंड दोषास की बैलेंसिंग करता है. कहा जाता है एंड देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च लाइक स्टडीज पब्लिश्ड ऑन दिस कि सिर्फ अनुलोम विलोम करके आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं. बट द की इज कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, एवरी डे विदाउट फेल. तो अनुलोम विलोम एक और नाम है इसका नाड़ी शुद्धन प्राणायाम. हमारे शरीर की हर चैनल की क्लेंजिंग करता है. हमारे में ब्लड चैनल्स है, एनर्जी चैनल्स है, लिम्फेटिक चैनल्स है. तो हर चैनल की क्लेंजिंग करता है अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, पाम फेसिंग अप. राइट थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. ओके, दिस इज ऑप्शनल. आपको दोनों उंगलियां फोरहेड पे रखनी है या नहीं रखनी, दिस इज entirely optional.
अब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है और पेट को बाहर निकालना है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें रिंग फिंगर से और राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ें। अब राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर पुश करेंगे। ये होता है एक रेप। दिस इज वन रेप। सो इन आउट इन आउट। जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जब लोग अनुलोम विलोम करते हैं वो यहाँ से तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बट सांस को पेट तक ले नहीं जा रहे। They do it very fast. You are not reaping the benefit if you're doing any breath work very fast. ये वाला, इसमें भी आपका की यही है, सांस पेट तक जाना चाहिए, पेट बाहर, और सांस निकलना चाहिए, पेट अंदर। अगर आप स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेथ वर्क है, सबने सुना होगा, बहुत ही कॉमन ब्रेथ वर्क है भ्रामरी। भ्रामरी एक हमिंग डी साउंड हम निकालते हैं थ्रू आवर थ्रोट। Now our thyroid is the storehouse of the fighter cells in the body. जब हम इसको stimulate करते हैं तो we increase the production of fighter cells. So definitely जो foreign invaders body में attack करने की कोशिश कर रहे हैं, ये fighter cells better fight कर सकते हैं। So भ्रामरी में हमने एक variation किया है जिसमें हम जब exhale करेंगे और humming bee की sound निकालेंगे तो हम chin को chest पे touch करने की कोशिश करेंगे। Then the stimulation in the thyroid gland is much more. Okay, so भ्रामरी के लिए दोनों अंगूठों से कान बंद कर लें, चारों उंगलियों को आंखों पे लें, नाक से हम गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को बाहर स्ट्रेच करेंगे और भ्रामरी की आवाज निकालते हुए सांस छोड़ेंगे, चिन को चेस्ट पे लेके आए। सांस भरते हुए सिर को वापस लें। Relax, you can open. So Bhramari could be done 10 reps in the beginning and you can increase the rep. Bhramari बहुत अच्छा है BP patients के लिए, ये BP को control में लेके आता है। Sleep के लिए Bhramari is very important. And people who have tinnitus, जो एक hissing sound आती है कान में, उनके लिए भी Bhramari बहुत effective है। और सबसे ज्यादा फायदा thyroid people के, because ये आपके thyroid को, throat को stimulate करता है, तो thyroid gland को active करता है। So 10 to 15 reps of Bhramari। और अनुलोम विलोम जो मैंने बताया था उसको इंस्टेड ऑफ रेप्स अगर आप मिनट करें तो 5 मिनट तक जरूर करें। तो ये 4 ब्रेथ वर्क अगर हम डेली लाइफ में ऐड करते हैं, देयर आर सो मेनी मोर, बट शुरुआत सबसे नहीं कर सकते, तो शुरुआत में अगर हम 3-4 करें, एटलीस्ट वी मेक अ ग्राउंड वर्क। और इस सबको करने के लिए 20 मिनट्स इज गुड इनफ टाइम जिन्हें आप सारे कर सकते हैं। तो एंड the key is consistency. You have to do it every day so that your immune function gets stronger, your health gets better. प्राणायाम करने के और भी बहुत सारे फायदे। एक इम्यून फंक्शन तो अच्छा होगा, स्किन बेटर होती है, आपको जागृति आती है, यू बिकम मोर अवेयर इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, आपके डिसीजन मेकिंग पावर एनहांस होती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, प्लस आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा जो एनर्जी है उसका फ्लो बढ़ता है। तो हर तरीके से इसके फायदे ही फायदे हैं। यू डोंट फील स्लगिश, यू डोंट फील लो, और आपको रात तक ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी भरपूर है। मोर ओवर, क्योंकि जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स नीचे है तो आप हैप्पी गो लकी मूड में आने लगते हो, तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं सिर्फ प्राणायाम को डेली लाइफ में ऐड करके। Do we have any questions? Yeah, thank you, Coach Ruchi. I have one question related to stress. कि ये स्ट्रेस जो है ये आपके, जैसा कि आपने बोला प्राणायाम इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू टू रिड्यूस स्ट्रेस, क्या आप हम लोग को बता सकते हैं कि ये स्ट्रेस हमारे इम्यूनिटी पे कैसे अफेक्ट करता है? ओके, तो जब हम स्ट्रेस होते हैं, जैसे स्ट्रेस कुड बी, इट्स जस्ट नॉट वर्क स्ट्रेस और हाउस स्ट्रेस, फियर इज आल्सो स्ट्रेस। ओके, फियर है, आपको किसी बात की वरी है, पास्ट पेनफुल हर्ट अगर आपने कोई रखा हो, किसी के लिए ग्रज है, जेलसी है, हेट्रेड है, ये सब स्ट्रेस है।
ये स्ट्रेस के अलग अलग नाम है, तो हर एक की लाइफ में अलग तरीके का स्ट्रेस होता है. ओके, बट व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड, हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं व्हिच आर कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन. जब ये हार्मोन आपके ऊपर आते हैं, आपके बाकी सारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग खराब होने लगती है. एंड हमारी बॉडी वर्क्स ऑन हार्मोन्स. हार्मोन्स आर प्रोटीन कैटलिस्ट्स इन द बॉडी, और विदाउट हार्मोन्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग रुक जाएगी. ओके, सो जैसे ही कॉर्टिसोल ऊपर आता है, आपके बाकी सारे हार्मोन्स हेवायर होने लगते हैं. लाइक आपका इंसुलिन सिक्रीशन हैम्पर करता है, आपका थायरॉक्सिन सिक्रीशन हैम्पर करता है, आपका प्रोलैक्टिन हैम्पर करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सब हैम्पर करते हैं, व्हिच आर द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रोथ हार्मोन्स इन द बॉडी. तो जब इतने सारे हार्मोन्स हैम्पर करेंगे तो इम्यून फंक्शन ठीक से काम कैसे करेगा? ओके, एट आपकी बॉडी को बैलेंस में, बॉडी इज अ ब्यूटीफुल डिजाइन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, और सब कुछ इसको ठीक करने के लिए अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं चाहिए. सो वी आर बोर्न विद द बिल्ट इन फिक्सिंग टेक्निक, हाँ, मगर उसको राइट एनवायरनमेंट चाहिए. राइट एनवायरनमेंट मीन्स यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ बैलेंस. अगर स्ट्रेस 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 है तो आपने अपने शरीर को बैलेंस से बाहर कर दिया, बीमारी लगेगी ही लगेगी. So to bring it back into balance, I just said अनुलोम विलोम is very very good breath, जिसमें आपके हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं. थैंक यू कोच. और एक फॉलो अप, स्पेशली जो पेशेंट्स को डायबिटीज है उनके लिए इन सब ब्रीदिंग टेक्निक में से कौन सी बहुत बेनिफिशियल है? सारी डायबिटीज के लिए सबसे इफेक्टिव अगेन अनुलोम विलोम, बिकॉज डायबिटीज इज हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना. तो जहां पे हार्मोन्स की बात आती है वहां अनुलोम विलोम सबसे इफेक्टिव है. इवन थायराइड पेशेंट्स के लिए भी अनुलोम विलोम और जो हमने किया था भ्रामरी बहुत इफेक्टिव. Alright, thank you so much Coach Ruchi. To all our users who are watching, we hope you've had some very insightful tips on how to boost and build your immunity. We also have Coach Ruchi's yoga course on our Beto app. So just you can visit the website www.betoapp.com/download. Download the app and take the weekly yoga course for diabetes by Coach Ruchi Khosla. And stay tuned to our pages because we're going to be coming up with a lot more live sessions for you. If you have any suggestions on what topics we should cover in the live sessions, please feel free to comment them below. And thank you so much, Coach Ruchi, for joining us. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you, everybody. Please stay home and stay safe.